हेडिंग डालो पेज नंबर 81 यूज योर ब्रेन पावर. नहीं, पेज नंबर सॉरी सॉरी पेज नंबर 82 लिखना. पेज नंबर 82 यूज योर ब्रेन पावर. आंसर 1 लिखना. इसमें सबसे पहला वाला आंसर लिखना. आंसर 1, is the number of consumers in a food web fixed? तो इसका आंसर लिखना. No, the number of consumers in a food web keep on changing. Number of consumers in a food web keep on changing as the ecosystem as the ecosystem is dynamic. As the ecosystem is dynamic in nature. आंसर 2 लिखना. आंसर 2. सर कैन यू रिपीट? आंसर 2. सर वाइट वाला आंसर 2 वो बाद में अभी देख लेना. फिर इसमें लिखो if one organism is the food of if one organism is the food of different consumers, if only one organism is the food of different consumers, that organism can become extinct लिखना. That organism can become extinct as its number will go on decreasing. As its number will go on decreasing. हेलो सर, डिक्सटिंग मतलब एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएगा. जैसे कि राइनोसोरस, जो अफ्रीकन राइनोसोरस है, अभी वो लोग क्या हो गए, एक्सटिंक्ट होने को आए. क्यों एक्सटिंक्ट होने आ रहे? क्योंकि अभी और न्यू जो राइनोसोरस है, ये नया राइनोसोरस नहीं पैदा हो सकता है. ठीक है, तो इनका ऑर्गेनिज्म अभी क्या हो गया, स्टॉप हो गया है. स्टॉप होने का मतलब क्या है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे कि एक कीवी करके, नहीं छोड़ ज्यादा इस पे डिटेल. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो गया, 0 हो गया. सर एक्सटिंक्ट का मेरे को पता है, पर डिक्सटिंक्ट मतलब कुछ नहीं ना. डिस्टिंक्ट मैंने गलती से बोल दिया, एक्सटिंक्ट. चलो नेक्स्ट लिखना. व्हाई इज बैलेंस इज नेसेसरी? तो इसमें लिखो फर्स्ट लिखना. फर्स्ट, इफ कंज्यूमर्स आर मोर, if consumers are more, the number of herbivores, if consumers are more, the number of herbivores will go on decreasing. The number of herbivores will go on decreasing and may become extinct. And may become extinct. Second point लिखना. If herbivores are more, if herbivores are more, the number of producers will go on decreasing. The number of producers will go on decreasing. Last point लिखना. Hence
hence balance or equilibrium is necessary in a food chain. Hence balance or equilibrium is necessary in a food web. लिखना in a food web. सर आपने क्या बोला, उसकी स्पेलिंग क्या है? ये कोई दी है सर इक्विलिब्रियम का बात सर फूड के बाद क्या बोला? इक्विलिब्रियम इज हेलो नेसेसरी इन अ फूड सर क्या है? तो वो वीडियो देख के लिख लेना अभी. चलो नेक्स्ट लिखो पेज नंबर 83 थिंक अबाउट इट लिखना. पेज नंबर 83 थिंक अबाउट इट. मीडियम. तो इसका आंसर लिखना. What happens to the energy during its transfer from producers to apex consumers? तो क्या होता है, आपने देखो डायग्राम देखा रहेगा पिरामिड का. तो क्या होता है, एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. तो आंसर लिखना. एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग as it is transferred. Energy goes on decreasing as it is transferred from producer to apex consumer. From producer to apex consumer. Next का आंसर लिखना. Does it remain trapped? तो इसमें लिखो it remains trapped in. It remains trapped in the apex consumer. उसके बाद कंटिन्यू करना. Also it remains trapped in apex. सर सेकंड आंसर. Also it is released. And also it is released in the form of. And also it is released in the form of heat energy. It is released in the form of heat energy. लास्ट क्वेश्चन बोला है डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ एपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ. तो लिखना नो इट डज नॉट रिमेन. नो इट डज नॉट रिमेन in the body of. No, it does not remain in the body of apex consumer. Because after death the body starts decaying. Because after death the body starts decaying and it keeps on losing energy. And it keeps on losing energy. Next लिखना use your brain power. Use your brain power. वही सेम पेज का ही है. तो इसमें लिखना if energy remains trapped in body of. If energy remains trapped in body of apex consumers. Body of apex consumers after death
microorganisms or decomposers. Microorganisms or decomposers won't be able to, microorganisms and decomposers won't be able to use this energy, won't be able to use this energy for providing nutrients, for providing nutrients as food for plants, for providing nutrients as food for plants. नेक्स्ट ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का आंसर लिखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका जस्ट आंसर मार्क करके रखना आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। द एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये मार्क करना। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गो डिक्रीजेस फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये मार्क करके रखना आपके टेक्स्ट बुक में, पिरामिड ऑफ एनर्जी का आंसर है। सर फुल पैरा ना? हाँ मैंने मार्क करके रखा है ना, वो बस ये है। सर हाँ बोलो। सर मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, वन वे ट्रांसपोर्ट। वन वे ट्रांसपोर्ट का आंसर लिखना, वन वे ट्रांसपोर्ट। तो लिखना सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मार्क करो। ग्रीन प्लांट्स स्टोर solar energy in the form of food. Energy is passed from one tropic level to the next. Decomposers dissipate some form of energy in the form of heat. Next लिखना, no energy returns to the sun. Such passage of energy is one way transport. ये जरा समझाता हूं। तो सन क्या करता है, सन से जो भी एनर्जी आता है ये कौन यूज करता है, प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स पे कौन फीड करते, कंज्यूमर्स फीड करते। कंज्यूमर्स पे कौन फीड करेंगे जरा बताओ, कौन फीड करता है कंज्यूमर्स पे? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर। लेकिन कोई भी एनर्जी कभी सन के तरफ वापस नहीं जाता है, तो हमेशा जो एनर्जी का डायरेक्शन है ये क्या है, हमेशा सन से लेके टुवर्ड्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स रहता है। लेकिन कभी ऑर्गेनिज्म से एनर्जी सन के तरफ नहीं जाता है। तो ये वन वे फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप क्या बोलते हो, ये वन वे फॉर्म ऑफ एनर्जी को वन वे ट्रांसपोर्ट बोलते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते, कल हम लोग इसके आगे का जो जियो केमिकल साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय सर। बाय। हेलो सर।